नेशनल चौपाल सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अभी फिलहाल जो है वो राजस्थान में हमारी टीम बनी हुई है। तो जब हम जमीन पर बात करते हैं तो उनपे क्या असर है और किस प्रकार का असर है वो हम आपको आज के इस आपके संडे विहारा प्रोग्राम में बताना चाहेंगे। और इसी के साथ इन तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझते हुए अपने समाज को ढालने की कोशिश करना है। अभी भी हमारे समाज में पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। उसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी की वजह से कई बार हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। एज अ बहुजन मीडिया हम ये बता रहे हैं कि हमारे समाज को अभी भी इन चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं समझता है कि एक व्यक्ति की एक वोट की कितनी कीमत होती है। और वो जो who is joining from India, and she will be speaking about the analysis of the recent elections. So let me just start up my monologue. Our leaders fought the social fight to get equal status in the society. Though we have numbers of our society remain backward, Baba Saheb Ambedkar understood the importance of education and the importance to reign onto the political power. It has been 70 plus years of India's independence. We are still struggling. Government is shutting down the public schools, poor hospital facilities, high unemployment among the Bahujan community, caste atrocities and the rapes on women have reached the highest tipping point. Unless you get the key to the political power, changes in the lives of Bahujan community are far from reach. As Kanshiramji said, we don't want the strong government, but the Majboor government. Though elections are held every 5 years, Bahujan community has remained the mayor voters while power is enjoyed by the few, resulting in our community's backwardness. Currently, 5 states are undergoing the assembly elections and are considered as a semi-final before the parliament elections next year in 2024. Whoever shines in these 5 states would be a kingmaker in the general elections next year. Considering these factors, where do Bahujan's community parties such as BSP, ASP, or GGP, which is Gondwana Ganatantra Party, or Bahujan Vanchit Aghadi stands in these 5 states? Will have ramifications either to establish the government at the state level or may have upper hand in the general elections next year. To discuss this, we have a special guest who is joining from India, Engineer Sneha. About Engineer Sneha, she is a founder of National Chaupal, a Bahujan media. She is a vlogger, social activist, public speaker, lecturer, and reporter. She is currently a student of journalism at Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, a central university in Lucknow. National Chaupal is a YouTube channel run by young, energetic Bahujan youths. By honoring the transformational ideology of our leaders, this channel has become the voice for the Bahujan community in India. National Chaupal team has extensively covered the election rallies in Telangana, MP, Chhattisgarh, and Rajasthan. Since the reporters are on the ground covering election each of five states, there cannot be a better channel to give our audience the better perspective about the election. Engineer Sneha, please unmute and please speak on this topic. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही सबको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो सबसे पहले आप सभी अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तमाम साथियों को जय हिंद। और इसी के साथ साथ अपनी बात शुरू करने से पहले तमाम उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज के इस आपके संडे विहार प्रोग्राम में आपने जो विषय लिया है वो बड़ा ही ये कह सकते हैं बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि आप जिस
लगातार जो है एक धार्मिक मूवमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है, हमारा अनुभव ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि मूवमेंट के जो अलग अलग असेट्स है, अलग अलग जो आंदोलन चलते हैं, मूवमेंट के जो अलग अलग भाग है, उन अलग अलग भागों को कई बार जो है वो एक साथ नहीं देखा जाता। और लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आना के माध्यम से हर विषय पर चर्चा हो रही है, और हर विषय पर जो है बात आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें ये मौका दिया, इसके लिए भी आप तमाम लोगों का धन्यवाद। पूरे जहां पर जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने जो विषय हमें दिया है, उसी के साथ साथ क्या सोशल इंजीनियरिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना इफेक्ट रहा, उन तमाम चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जब इस मीडिया की बात करते हैं, लोकतंत्र में जो मीडिया होता है वो विपक्ष की भूमिका में होता है, लेकिन भारत के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष की भूमिका में जो है वो मीडिया नहीं है। मीडिया सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बना रहता है। तो ऐसे में हम उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां पर जो ओपिनियन पोल करते हैं, या फिर या जो बताया जाता है पोल पोल के माध्यम से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो हमने एक नया प्रयास किया है कि आखिर जमीन पर क्या है और जमीन पर क्या लोग देख रहे हैं। क्योंकि जब हम रिजल्ट देखते हैं, और इसके पहले हमने जो रिजल्ट देखे हैं, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, तो उसमें मीडिया जो दिखाता है, मीडिया जो परसेप्शन बनाता है, उसी परसेप्शन को जो है वो हम देखते हैं रिजल्ट में तब्दील होते। कई बार ये सवाल आता है कि ये रिजल्ट में तब्दील कैसे हो रहा है, और या फिर मीडिया को ऐसा कैसे पता होता है कि इसी इतने ही सीटें आएगी, या फिर इस प्रकार का वो अपना जो ओपिनियन पोल बनाते हैं, वो तमाम चीजों को हम जब देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक कल्पना होती है, और वो कल्पना उनके दिमाग की उपज होती है, और उस कल्पना को वो अपने मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, और उस टूल का इस्तेमाल करके वो एक परसेप्शन बनाते फिरते हैं। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, हमारा वोटर क्या सोच रहा है, हमारा समाज कहाँ है, इसके भी कई सवाल आते हैं कि आखिर ये जो सर्वे आया है, ये जो पोल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो इसमें हमारी भागीदारी थी या नहीं थी। इन्होंने अगर सर्वे किया है तो उस सर्वे में जो पार्टिसिपेंट थे वो आखिर कौन थे, कई ऐसे सवाल आते हैं। तो हम उतने टेक्निकल हमारे पास असेट्स नहीं होने की वजह से हम सीधा जमीन पर पहुंच रहे हैं। और जब हमने नेशनल चौपाल सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और अभी फिलहाल जो है वो राजस्थान में हमारी टीम बनी हुई है। तो जब हम जमीन पर बात करते हैं तो उनपे क्या असर है और किस प्रकार का असर है, वो हम आपको आज के इस आपके संडे विहारा प्रोग्राम में बताना चाहेंगे। तो चूंकि सबसे पहले जो है सोशल इंजीनियरिंग की ही बात करते हैं, राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का जो इस्तेमाल है वो कई अलग अलग नेताओं ने किया है, लेकिन सबसे इफेक्टिव हम बहुजन राजनीति में इसे बहुत ज्यादातर मानते हैं। क्योंकि बहुजन राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जो जिन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, जिनकी छाव से भी दिक्कतें हो रही थी, जिनके छाव से भी भाई इस देश का धर्म जो है वो भ्रष्ट हो रहा था, इस देश का जो कथाकथित जो सवर्ण मानसिकता है वो हर्ट हो रही थी। तो उस सिस्टम में अगर ये चीज आती है कि आप शासन सत्ता के भागीदार बन जाते हैं, हजारों हजारों सालों से जिन लोगों ने आपको पानी नहीं पीने दिया, हजारों हजारों सालों से जिन्होंने देश के अंदर मनुस्मृति के अनुसार जो है आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, शासन सत्ता की तो बात बहुत दूर की है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, तलवार उठाने का अधिकार जिन्होंने नहीं दिया, इसी के साथ साथ जो है आपको राजपाट हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया। उस सोशल इंजीनियरिंग से ये होता है कि जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला अब तक, उन तमाम लोगों को उन तमाम लोगों का जो है वो राजपाट में हिस्सेदारी मिल जाती है, उन तमाम लोगों की सरकारें बनती हैं। तो इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग जो है बहुजन समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये राजनीति के
पुराने जो आयाम है, चाहे बात करते हैं जेपी का जो आंदोलन चला इंदिरा गांधी के बाद, इमरजेंसी के बाद, उसको भी हम डिनाई कर सकते हैं। उसके बाद अटल बिहारी ने जो अपने हिसाब से जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही, उसको भी हम डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग थी और बहुजन सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात करें, तो इसमें उन लोगों का पार्टिसिपेशन है जिनको कभी हिस्सा नहीं मिला, जिनको कभी मौका नहीं मिला, और जो मौका मिला वो भी कहीं ना कहीं उनके आका या फिर उनके बॉस जो है वो कहीं वो बॉस वही बने रहे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव 2007 में माना गया। 2007 में इसलिए माना गया क्योंकि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। हालांकि उसके पहले भी 3 बार सरकार बनती है, और उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का सारा क्रेडिट जो है वो माननीय कांशीराम साहब को जाता है। तो दलित ओबीसी गठजोड़, मतलब दलित के साथ ओबीसी, इनको एक साथ लाने का, फिर दलित मुसलमान और ओबीसी, ये एक जैसे कि नारा दिया था कांशीराम साहब ने कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित ओबीसी मुसलमान। इस प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग के कई फॉर्मूलेज जो है वो कांशीराम साहब ने दिए, और उसके बाद 2007 में दलित ब्राह्मण वाला एक फार्मूला रहा। उसके बाद अभी आज की तारीख में हम बताएंगे। तो आज की तारीख की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, या तेलंगाना की बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला दिया गया है वो फार्मूला जो है दलित आदिवासी, जो कि एक नेचुरल अलायंस है। और उस नेचुरल अलायंस को सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों में देखते हैं कि ये नेचुरल अलायंस कितना इफेक्टिव रहा है, और ये सोशल इंजीनियरिंग कितना काम कर पाएगी। क्योंकि हमने जब नेशनल चौपाल के माध्यम से टॉप 10 विधानसभा निकाली थी, सबसे पहले छत्तीसगढ़, तो 10 टॉप 10 विधानसभा हमने निकाली थी, और उन टॉप 10 विधानसभा में हमने ये बताने का प्रयास किया कि 10 विधानसभाओं में बसपा जो है वो किस प्रकार से इफेक्टिव साबित होगी। और उस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मतलब जो वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अपने आप को मानती है, रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को मानती है, तब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आइडियोलॉजी की अगर बात करती है, तो बहुजन समाज पार्टी जब अकेले लड़ रही थी तो हमने 10 वो सीटें निकाली थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक दावेदारी पेश कर सकती है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन होता है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आंकड़े बदल जाते हैं और समीकरण भी बदल जाते हैं। और एक और बात होती है कि जिस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय दल के तौर पर देखा जा रहा था, या मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देखा जा रहा था कि वो क्षेत्रीय दल है, लेकिन ऐसे में ये जब गठबंधन हो जाता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी अपनी गरिमा जो है वो बढ़ जाती है। और इसी से ये समझ में आता है कि आज तक जो आदिवासी कम्युनिटी, अगर हम बात करते हैं आदिवासी कम्युनिटी की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, 32% है। 32% शेड्यूल ट्राइब है, और शेड्यूल कास्ट जो है वो 15% है। तो ये जो प्रतिशत है, इनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी इनका शासन सत्ता में ये तो दूर ही रहे, और इनकी जो राजनीतिक दल बने थे वो क्षेत्रीय बनकर रह गए थे। लेकिन इसको ये कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म और इसको मजबूती देने का काम जो है वो एक इस गठबंधन की है। तो ये एक नेचुरल अलायंस जो है छत्तीसगढ़ में अगर होता है, तो छत्तीसगढ़ में टॉप 10 के साथ साथ हम जिस हमारे जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि टॉप 10 विधानसभा तो ये बहुजन समाज पार्टी की ही साथ सिंगल, जब बहुजन समाज पार्टी चल रही थी उसी समय पे, तो इसमें अब इन आंकड़ों में बदलाव होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब छत्तीसगढ़ के राजनीति की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब एससी एसटी के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न की भी बात होगी। और उत्पीड़न की बात जब होगी तो सवाल या निशान जो है, रमन सिंह की सरकार जब रही थी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, और अभी जो भूपेश बघेल की सरकार है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं।
एट्रोसिटीज के मामले में सबसे ज्यादा आदिवासियों का उत्पीड़न छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ना सिर्फ उत्पीड़न हुआ है बल्कि सेग्रीगेशन हुआ है, उनका उनका विस्थापन भी बड़ी तादाद में हुआ है। जंगले जो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने कई उद्योगपतियों को दी। तो इससे ये परेशानी हो रही है कि शेड्यूल ट्राइब अगर अपने आंदोलन को पहचानने में अगर सफल हो जाता है और इसे वोट बैंक में अगर बहुजन समाज पार्टी तब्दील कर लेती है तो 90 सीटों में से 50 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों को प्रभावित कर रही है बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। 50 सीटों को प्रभावित करना, और अब उन 50 सीटों में से क्या कुछ बचा पाती है वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारा एनालिसिस कहता है कि लगभग अगर 50 सीटों को प्रभावित कर रही है तो बेटा तो आधे से अधिक जो सीटें हैं उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो, एक मिनट बेटा, बहुजन समाज पार्टी उन आधे से ज्यादा सीटों पर काम कर सकती है, रिजल्ट भी दे सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं उन तमाम दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं तो दूसरे स्टेट्स में, एक मिनट, दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो दूसरे स्टेट्स में एमपी पहले लेते हैं। तो एमपी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है परसेंटेज में देखा जाए तो वो 15% से अधिक है और शेड्यूल ट्राइब की 22% से अधिक है। तो ये लगभग जो सीटें वहां पर है 230 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी उसमें लगभग 100 सीटों पर जो है वो अपना प्रभाव रखती है। तो इन जैसे अब बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर पहले ही 11 सीट इसके पहले बसपा निकाल चुकी है, तो 11 के बाद से ही इस आंकड़े को हम मानकर चलते हैं। 2018 में बसपा के पास मध्य प्रदेश में 2 सीटें रही, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें रही। मध्य प्रदेश में बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ में जो रहा, छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस के साथ में बसपा रही थी, लेकिन जोगी कांग्रेस की वजह से बहुजन समाज पार्टी को उतना कुछ ये कह सकते कि वो वोट बैंक में तब्दीली नहीं हो पाई, वो जो गठबंधन था। तो ये एक दिक्कत हमेशा बसपा के साथ रहती है कि इसका जो कास्ट फैक्टर है बसपा का वो हमेशा हर गठबंधन के साथ दिखाई देता है और वो कास्ट फैक्टर की वजह से बहुजन समाज पार्टी कई बार पिछड़ जाती है। वहीं अगर इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर यूपी का चुनाव हम देखते हैं तो यूपी के चुनाव की बात करते हैं और जब बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में, पिछले लोकसभा में 2019 में सपा के साथ गठबंधन रहा था और इसमें जो वोट ट्रांसफरेबल है, कमिटमेंट वाली जो बातें होती है वो कई बार जो अन्य पार्टियां होती है जो बसपा के साथ चलती है वो अन्य पार्टियों में वो कमिटमेंट चीज नहीं दिखने की वजह से बसपा को कई बार नुकसान होता है। कि जैसे अजीत जोगी की अगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो वहां पर अजीत जोगी के परिवार की सारी सीटें जो है वो निकल जाती है, लेकिन बसपा की जो सीटें निकलती है वो आम लोगों की निकलती है, मतलब किसी के परिवार का जो है परिवार का प्रभुत्व बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में नहीं नजर आते। वो अपना सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, अपना कानून का राज और अपने तमाम वो जो मुद्दे हैं उसी मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं और उन्हीं मुद्दों को लड़ने वाले जो लोग होते हैं वो चुनावी मैदान में जीत भी हासिल करते हैं। अगर यही बात करते हैं यूपी की बात कर रहे हैं तो अगर यूपी में 2019 में यहाँ पर भी कई लोग जो है बसपा के जो लोकसभा में 10 जो सांसद जीत कर आए उसको लेकर क्या बताते हैं कि सपा की वजह से वो सांसद जीत कर, चूंकि 2024 में लोकसभा भी आने वाली है तो इसीलिए थोड़ा देख लेते हैं कि पुराने आंकड़ों में। तो इसमें कहा जाता है कि सपा की वजह से 10 सीटें बसपा की आई, लेकिन सपा की 5 आती हैं और उन 5 सीटों में से मैक्सिमम जो सीटें हैं वो उनके परिवार की है, मतलब इसमें उनके अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके चाचा। तो इस प्रकार से ये जो सीटें हैं ये अपने परिवार की ही सीटें बचा सकते हैं, मतलब उनका हमारा वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, एससी एसटी का इजीली ट्रांसफर होता है क्योंकि वो अपने नेता के अनुसार या फिर जो उनकी पार्टी लाइन जो कहती है उसके अनुसार।
तो सारी दारोमदार जो है एमपी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में हमने 10 जो सीटें निकाले, तो इसमें जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, विंध्य का जो एरिया है, इसमें खासकर अमरपाटन, रीवा, भिंड, मुरैना, लाहार, अटेर, निवाड़ी, ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, परसवाड़ा, कटंगी, ये तमाम क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी की अपनी पकड़ रही है। और यहाँ पर बड़ी ही कम मार्जिन से खासकर ये परसवाड़ा, कटंगी इस तरफ जो है, जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आते हैं, वहां पर कम मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी पीछे रही है। वहीं ये जो पहले जो बताया, पहले शुरुआत के जो 8-9 विधानसभा है, अमरपाटन, रीवा, भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी की कई बार जो है वो विधायक रह चुके। अब तक के सबसे ज्यादा विधायक जो है मध्य प्रदेश में बसपा के रहे हैं। 11 एक समय में बहुजन समाज पार्टी के पास 11 विधायक एमपी से रहे थे। तो इसके बाद और जो कम विधायकों की अगर बात करें तो अभी 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, एक पथरिया से है और एक विधानसभा का नाम हम भूल रहे हैं। तो ये 2 विधानसभा में बसपा के अभी जो है विधायक है। छत्तीसगढ़ में जो है जैजेपुर और पामगढ़ से 2 विधायक है। तो ये 2 के बाद से जो आंकड़ा शुरू होगा वो हम मानेंगे कि आने वाले समय में कुछ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का के गठबंधन से बदलाव हो रहा है। तो ये एक चीज है। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में जिस एरिया में अभी जो चुनावी माहौल है, जहां से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, बने हुए हैं, तो उसमें बानसूर है, बंदीकुई है, ये विधानसभा ऐसी है जहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी का अपना प्रभाव है। और इन क्षेत्रों में मीना और गुज्जर जैसे सोशल इंजीनियरिंग की ही बात अगर की जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आलम ऐसा है कि एससी, एसटी और ओबीसी, तो एससी, एसटी, ओबीसी का सबसे पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो है ओबीसी पर लगातार काम हो रहा था। हमने पिछली बार देखा कि ओबीसी सम्मेलन जो है वो बसपा की तरफ से किए गए थे। तो ऐसे में ओबीसी का इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक और बात इसमें हुआ, एमपी में सबसे अधिक बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी के कैंडिडेट्स दिए। तो अगर ये ओबीसी के कैंडिडेट्स अपने उन जनरल सीटों पर अगर अपना असर जो है रख पाते हैं, जिन सीटों पर सवर्ण कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि अभी जो माहौल है वो एंटी बीजेपी हो गया, तो अगर एंटी बीजेपी होता है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अगर ऐसा परसेप्शन कोई बना रहा है या फिर ऐसा परसेप्शन किसी का है, तो इसमें ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जिस ओबीसी को हिंदू राष्ट्र की वजह से कहो या राम राज्य की वजह से कहो, या हिंदू मुसलमान वायलेंस की वजह से कहो, अगर वो कहीं भी केंद्रित हो जाता है बीजेपी की तरफ और अगर फिर भी वो परेशान है, तो वो सडनली ट्रांसफर होता है कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस में क्या होगा अगर, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट ही ओबीसी नहीं दिए हैं, ओबीसी कैंडिडेट कांग्रेस ने दिए नहीं है, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीटों पर दिए हैं। तो अगर मान के चलते हैं कांग्रेस की जो पॉलिसी है या फिर कांग्रेस का जो नेचर है, उसे बड़ा सेक्युलर जो मानते हैं, लगातार हमारे लोगों का एक कंसेप्ट होता है कि बीजेपी से थोड़ी खराब जो है थोड़ी अच्छी कांग्रेस है। तो कांग्रेस का अगर थोड़ा सा भी सेक्युलरिज्म को हो या थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो अफेक्शन है, उन चीजों को अगर वो बताते तो जरूर किसी जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या तो ओबीसी का कैंडिडेट देते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा भूल चूक कर नहीं किया है। तो ये चीज अगर ओबीसी समझ जाती है, कई बार ओबीसी महासभा ने भी कुछ सीटों पर, जैसे कि छतरपुर हो गया, छतरपुर में बहुजन समाज पार्टी, दमोह हो गया, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को ओबीसी महासभा ने अपना जो है समर्थन दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर एससी एसटी और ओबीसी का जो गठजोड़ हो रहा है, मतलब नेचुरल अलायंस जिसे हम कहते हैं, नेचुरल अलायंस से कहते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वही एससी एसटी ओबीसी है। तो उस अगर एससी एसटी ओबीसी के बेस को अगर हम देखते हैं या ध्यान में रखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि वो कुछ ना कुछ जो है अपना असर छोड़ सकता है। और ये जो असर छोड़ेगा तो इससे बहुजन पॉलिटिक्स में बदलाव आएंगे और बहुजन पॉलिटिक्स में पॉजिटिव बदलाव आएंगे।
वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान में भी वो तमाम राजस्थान भी ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ कि कभी भी बहुजन समाज पार्टी वहां से खाली हाथ नहीं लौटी है। तो ये बहुजन समाज पार्टी, तो राजस्थान से बहुजन समाज पार्टी कभी खाली नहीं लौटी है। तो राजस्थान से बहुजन समाज पार्टी खाली नहीं लौटी है, और छत्तीसगढ़ से भी बहुजन समाज पार्टी कभी खाली नहीं लौटी है। तो वो ये है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में भी आंकड़े बढ़, दिक्कत ये होती है, दिक्कत ये होती है कि पिछले बार जो राजस्थान में हुआ कि 6 विधायक जीत कर आए और 6 के 6 जो है उन्होंने अपने आप को कांग्रेस में विलय कर लिया, और अब तक वो पेंडिंग जो है मामला अभी तक चल रहा है। तो ये जो नुकसान हुआ, इससे बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसमें थोड़ा सा निगेटिविटी है। और हाँ, हम देख रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आजाद समाज पार्टी का कोई असर तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में थोड़ा बहुत असर दिख रहा है। अब क्या ये असर बसपा को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन कुछ जगहों पर जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट्स ने सीधा सीधा बीजेपी या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को समर्थन दे दिया है, तो इससे ये एक चीज हो सकती है कि बहुजन समाज पार्टी को इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको 50-50 लेकर चलते हैं कुछ सीटों पर। हालांकि सारे सीटों पर आजाद समाज पार्टी भी असर नहीं रखती है। बहुजन समाज पार्टी इसलिए रख पाती है क्योंकि वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, उस वजह से बहुजन समाज पार्टी का असर हम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की अभी जो बागडोर है वो आर एस प्रवीण कुमार के पास है। तो तेलंगाना में 119 सीटें हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट की 17% जनसंख्या पॉपुलेशन है, और 20 SC ST शेड्यूल ट्राइब की है। तो ऐसे में ये कुल मिलाकर SC ST की जो पॉपुलेशन है ये लगभग 35 से अधिक 35 से अधिक हो रहा है। तो इसमें भी इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए तेलंगाना भी नया है। तेलंगाना में जब तेलंगाना आंध्रा में रहा और माननीय कांशीराम साहब जब आंध्रा संभालते थे या फिर आंध्रा के जब थे, तो काफी काम जो है कांशीराम साहब के समय में भी हो चुका है। उसके बाद तेलंगाना जब अलग होता है, तो इसके पहले हमें लगता है कि 2013 की बात होगी, तो 2013 में या फिर उस समय बहुजन समाज पार्टी की वहां पर MLA रह चुकी है। तो अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है उसके। और उस समय जो है इतनी कनेक्टिविटी तेलंगाना की नहीं दिख रही थी। हालांकि आज भी लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति उस समय रही होगी उससे ज्यादा मजबूत स्थिति जो है वो आज की तारीख में दिख रही है। अब इसमें जिन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, उन मुद्दों को भी हम देख लेते हैं। इससे ये हमको समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण भी है या नहीं, क्योंकि देश के अंदर जो है विकास के एजेंडे पर काम वोट मांगा जा रहा है। वही ना सिर्फ विकास के एजेंडे पर, एक सिक्योरिटी सुरक्षा के नजरिए से भी वोट मांगा जा रहा है कि देश के अंदर मुस्लिमों से खतरा है तो सुरक्षा चाहिए, हिंदुओं को सुरक्षा की जरूरत है। ये भी फैक्टर काम करेगा, राम मंदिर फैक्टर काम करेगा। अभी जो अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां पर जिस प्रकार से दिए लगाए गए हैं, और उन दियों का जो आंकड़ा है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। ये एक चीज, हिंदुत्व का एजेंडा, ये सारी चीजें जो है हिंदू मुसलमान वायलेंस, ये सारी चीजें काम करने वाली है। इसी के साथ साथ और भी एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वो है ईवीएम की ईवीएम की भी बात कर ले। ईवीएम को लेकर भी कई सवाल है, और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कई सवाल है। ये सवाल तो ये इस देश के अंदर कई कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। पहली बार विपक्ष की विपक्ष लीडर के तौर पर अगर अपोजिशन लीडर के तौर पर देखते
तो ये सिर्फ बसपा की तरफ से ही सवाल कई बार खड़े हुए थे, और पिछले बार भी 2011 की बात करते हैं, 2011 के बाद से लगातार ये बसपा की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये एक फैक्टर रहेगा इस इलेक्शन में कि जो इस इलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ और भी कुछ मुद्दे हैं। राजस्थान की अगर बात करते तो राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है गहलोत सरकार के उपस्थिति में, मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज के मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में अगर हम आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो बीजेपी के शासनकाल में ही नहीं, बल्कि जहां पर कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लेते हैं, या फिर राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, तो उनमें भी एट्रोसिटीज के मामले कम नहीं है। इवन हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा इस देश में पर्व मनाया गया और उसे अमृत महोत्सव कहा गया। अमृत महोत्सव में अमृतकाल इस सरकार के जो काल है, शासन काल है, उसको अमृतकाल कहा गया। और इसी अमृत महोत्सव में इंदर मेघवाल जैसा एक बड़ा मामला, जातिवादी मामला सामने आता है। तो ये जो मामले हैं, इन मामलों को अगर हम ये देश का जो बहुजन समाज है, इन मामलों को सिर्फ आंदोलन की तरह ना लेकर अगर इसे बदलाव की दृष्टि से लेते हैं कि हमें इस प्रकार के एट्रोसिटी से जो है बदलाव चाहिए, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इस पर अगर भाई लगा दिया जाता है तो ये भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है राजस्थान में कि लगातार जो एट्रोसिटीज हो रही है उन एट्रोसिटीज पर लगाम कैसे लगेगी। पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी के जो 6 कैंडिडेट आए थे इसकी, तो ये 6 कैंडिडेट जो बसपा के वहां छत्तीसगढ़ में जीते थे, मध्य प्रदेश में 2 जीते थे, और ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी ने एट्रोसिटीज के मामले को कम करने के लिए जो 2 अप्रैल का 2018 का जो भीमा कोरेगांव के बाद जो बड़ा आंदोलन हुआ है और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को खत्म करने के लिए 2 मामलों को लेकर जो आंदोलन छेड़े जाते हैं, उसके बाद हजारों की संख्या में SC/ST के जो छात्र छात्रा है, यूथ है, उन पर जो मामले दर्ज होते हैं, उन मामलों को खारिज करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जो है अपना समर्थन दे दिया था और सरकार बनाई थी कांग्रेस की। तो उन सिर्फ मामलों को खारिज करने के लिए जब बसपा ने दिया, तो उसके बाद मामले खारिज तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकली जिस जो स्ट्रेंथ थी, वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हो जाती है, और वो विधायक जो है वो टूटकर इसमें कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये एक चीज है कि जब हमने राजस्थान में ये रिपोर्टिंग जब हमारी टीम कर रही थी, तो कई लोग इस बात से दुखी थे कि वहां पर हमने वोट तो दिया, लेकिन वोट देने के बाद ये लोग कांग्रेस में चले गए, और उसके बाद ये एक निराशा जो है वो लोगों में नजर आई, और खासकर SC/ST वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी गुज्जर और मीना, ये 2 समुदायों को साथ में लेकर, बाकी SC/ST की तमाम कम्युनिटीज तो रहेगी, लेकिन खासकर गुज्जर और मीना, इन 2 कम्युनिटी और साथ ही सैनी, तो उसमें जो सैनी है वो OBC कम्युनिटी में आता है, लेकिन कुछ सैनी जो है वो परिवर्तनवादी है, जो कि अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोक से जो जोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ सैनी समाज जो परिवर्तनवादी है वो बसपा के साथ है आइडियोलॉजिकली। और अगर पॉलिटिकल बात करें तो वो तमाम जो गुर्जर समाज है जो अपने आप को राजपूत कहता है, और मीना समाज है, वो जो पॉलिटिकली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बसपा में ताकत देखते हैं, वो भी बसपा के साथ है। तो ये अलग अलग समीकरण जो निकल कर आ रहे हैं, इससे कई उम्मीदें जो है वो बसपा को है, और हमको भी ये बसपा को जब हम जमीन पे अभी देख रहे हैं तो हमें भी लगता है, लेकिन जिस फैक्टर्स को बताया कि जिन फैक्टर्स की वजह से नुकसान भी हो सकता है, उन नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों पहलुओं को हमें देखना है कि अगर वही इन्हीं विधानसभा को अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं विधानसभा में कई लोकसभा जो है वो भी कवर हो रही है।
ये 2000 जब हमने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम दौरा चेक कर रहे थे कि वो किन किन क्षेत्रों में जा रही हैं और किन किन क्षेत्रों में वो अपनी सभाएं कर रही हैं, तो इससे ये समझ में आया कि उन्होंने कुछ लोकसभा क्षेत्र जो है वो टारगेट कर रखे होंगे, शायद उनकी रणनीति रही होगी। ये एक चीज समझ में आई कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट करके कुछ लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने टारगेट किया और ये जो सभाएं हो रही है वो लोकसभा के क्या कह सकते हैं उसे, जो मैप आउट होता है उस मैप आउट को भी ध्यान में रखकर किया गया है, तो ये लोकसभा के लिए भी काम में आ सकता है। तो ऐसे जो है इसमें बहुजन समाज पार्टी ने दो मुद्दों को टारगेट किया है। एक तो जातियों का समीकरण बनाकर कि कौन सी जातियां, एक तो नेचुरली जिनके साथ जिनकी पिटाई हुई है, व्यवस्था ने जिन जिनकी पिटाई की है, तो उन लोगों को पहले तो अपना साथ लिया, और दूसरी जो चीज है जो एड ऑन कर रही है बहुजन समाज पार्टी, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में दबंग अपनी मजबूती रखते हैं, तो ये चीजें जो है एक पॉजिटिव चीजें हैं। वही कुछ जगहों पर बहुजन समाज पार्टी जो है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी काफी फाइनेंशियली अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट्स की अगर स्थिति को देखा जाए तो वहां पर काफी कमजोर स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है। फाइनेंशियल तौर पर वोट के बल पर नहीं चल रहा, वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी का कम नहीं है, लेकिन फाइनेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट्स है और फिर बहुजन समाज पार्टी की भी जो अपनी हालत है वो फाइनेंस तौर पे सही नहीं है। इस वजह से दिक्कत ये होती है कि वोट की खरीदी बिक्री जो है वो बड़ी तादाद में होती है, और ये भी कोई ये नई बात तो हम नहीं बता रहे हैं कि वोट की खरीदी बिक्री होती है। कांग्रेस के समय से ही वोट की खरीदी बिक्री जारी है और ये कांग्रेस ने ही शुरू किया था, और लोकतंत्र को खोखला बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। तो और ये एक है फैक्टर अफेक्ट करेगा इस विधानसभा चुनाव में। और इसी के साथ साथ कई जगहों पर हमको ये देखने को मिला, जैसे इन क्षेत्रों में भिंड मुरैना साइड में जहां पर जिसे बसपा का गढ़ माना जाता है, मध्य प्रदेश का और यूपी का ये बॉर्डर होता है, तो इस एरिया में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है और इन क्षेत्रों में बसपा की मजबूती है। जब सभाएं हुई थी यहाँ पर, जनसभाएं जो हुई बसपा की, उन जनसभाओं को अगर हम देखते हैं तो हमको ये समझ आता है कि ये यहाँ पर तादाद जो है लोगों की तादाद बहुत मतलब जनसैलाब के तौर पर लोग देख रहे हैं। अगर आप उनको फुटेज में देखते हैं, वीडियोज में देखते हैं, फोटोज में देखते हैं, तो लोगों की संख्या जो है वो आपको समझ में आएगी। तो ये एक चीज है, लेकिन उन जगहों पर क्या दिक्कत हुई ये हम आपको बताएंगे। उन जगहों पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम इस देश के लोग हैं, वो लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारी सबसे बड़ी मजबूत लोकतंत्र है पूरी दुनिया में, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे वोट के अधिकार का गलत इस्तेमाल या फिर हमारे वोट का दुरुपयोग या फिर हमें हमारे वोट के अधिकार का उपयोग करने से रोका भी जाता है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो हम इस भी पहलू पर बात कर रहे हैं। भिंड और मुरैना जैसे क्षेत्रों में जो कैंडिडेट्स है या फिर जो कैंडिडेट्स के कार्यकर्ता है या फिर जो वोटर है, उन वोटर्स को 5 बजे तक जो है वो बूथ पर नहीं पहुंचने दिया, ये भी एक चीज सामने आई है। उसी के साथ साथ कई जगहों पर ये भी होता है कि जो वोटर है और जहां समझ में आता है कि ये दलित बस्ती है, ये आदिवासी बस्ती है या फिर ये मुस्लिम बस्ती है, तो उन लोगों के वोट ही कट जाते हैं। मतलब उनका जब पता हो जाता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है उनको पता, अपोजिशन के जो लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग जो है ये हमारा वोटर नहीं है, और अगर ये हमें वोट नहीं देंगे और अगर ये वोट मान लो बसपा को चले जाते हैं तो इससे सामने वाली पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको अगर नुकसान होना है तो इसमें भी एक चीज होती है, इनके वोट ही काट दिए जाते हैं।
उनके वोट गायब कर दिए जाते हैं। तो ये एक चीज है, वोट बिक जाता है। माननीय कांचीराम साहब करते अपने वोट की सुरक्षा की जो बात माननीय कांचीराम साहब ने कही थी, वो इसी से संबंधित थी कि एक तो तुम्हारा वोट कट जाता है, दूसरा वोट जो रहता है वो बिक जाता है। अगर अगर बिका नहीं, कटा नहीं, तो वो बूथ ही कैप्चर हो जाता है, मतलब आपको पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब ईवीएम का टेक्निकल फैक्टर तो है ही, और एक फर्जी ईवीएम का भी फैक्टर है, बोगस वोट का भी फैक्टर है, और इसके साथ साथ ये तमाम चीजें, और ये तमाम चीजें जो है वो किसी अन्य पार्टियों के लिए जो है लागू नहीं होते, ये सिर्फ बसपा के लिए लागू होते हैं। क्योंकि हम बहुजन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुजन पॉलिटिक्स को रोकने के लिए हम ये बता रहे कि इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो बड़ी तादाद में हो रहा है। वही बात करते हैं, तो आज के परिवेश की बात करते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? हेलो। हाँ जी, अभी और 3 मिनट, 2 मिनट से आपके लिए, और फिर क्वेश्चंस आंसर्स के लिए अपन चालू करेंगे फिर। और तो ये हम इसे कंक्लूड भी करते चलेंगे। हमारी बच्ची थोड़ा परेशान कर रही थी, जी, कोई बात नहीं। तो तो ये जो है इसमें, और हम इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का पॉजिटिव तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन इस देश की व्यवस्था में आपका जो है आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, या फिर वो हिस्सेदारी को रोकने के लिए, उस पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए ये बड़ा प्रयास होता है, और ये सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। क्योंकि अगर टेक्निकली कहा कहो या फिर डेटा कहो, तो जो डेटा हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ 10 टॉप 10 सीटों की बात की जा रही है, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि लगभग जो है हमारे मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं, तो लगभग हम 100 सीटों पर हम प्रभावित कर रहे हैं। SC ST का जो वोटर है वो 100 सीटों पर प्रभावित कर रहा है। अब इन 100 सीटों में से हम ये मानकर चलते हैं कि 100 सीटों में से हो सकता है 50 सीटें 2 नंबर पर रहे, कुछ सीटें 3 नंबर पर रहे, लेकिन लगभग 25 से 30 सीटें जो है वो हम उसे पावर में देखते हैं, या फिर हम उसे वोट में ट्रांसफर करते हुए देखते हैं, या फिर रिजल्ट के रूप में देखते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 50 सीटों पर हम अफेक्ट कर रहे हैं, जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी ये हुआ है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी अभी लीडरशिप नहीं होने की वजह से पार्टी तो है लेकिन कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए। तो वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो है वो गोंडवाना गण पार्टी से बनाया है, और वो ट्राइबल जो लीडर्स हैं वो बहुजन समाज पार्टी तैयार करने में कामयाब है। तो ये एक चीज होती है कि जब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो उनके पास OBC लीडर, और उनके पास जो है शेड्यूल कास्ट में लीडर, उनके पास जो है वो शेड्यूल ट्राइब में लीडर, ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये चीजें कांग्रेस में नहीं देखने को मिलती, जिस कांग्रेस को हम बड़ी सेकुलर पार्टी कहते हैं। और रही बात OBC बीजेपी की, तो बीजेपी भी सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रही है। इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी हर तरह से जो है वो अपने आप को 2024 के लिए ही नहीं, बल्कि कई स्टेट्स में बीजेपी जो है वो छोड़ देगी कई कई स्टेट्स में। अभी जो 5 स्टेट है, उन 5 स्टेट्स में बीजेपी छोड़ देगी कि हम इन स्टेटों को छोड़ देंगे, क्योंकि 2024 के लिए उन्हें लगता है कि, और जैसे दिल्ली में हुआ कि आम आदमी पार्टी को जो है विधानसभा में मेजोरिटी मिल जाती है, लेकिन लोकसभा में दिल्ली में लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये जो होता है, इससे समझ में आता है कि कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी, आइडियोलॉजिकल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेट आप रख लो, और जो सेंटर है वो हम देख लेंगे। तो ये चीजें, ये भी चीजें हैं। अब जो बहुजन समाज पार्टी का इस बार का जो इलेक्शन है, या विधानसभा के जो इलेक्शन है, तो MP में ये हमको त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी को इस प्रकार से काउंट नहीं करते थे। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि सोशल मीडिया की वजह से आज मध्य प्रदेश में इतने जो पत्रकार हैं वो हो चुके हैं। भिंड में देखिए आप, मुरैना में देखिए, तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार जो है रैलियों को कवर कर रहे हैं। इससे दिक्कत ये हो रही है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया बहुजन आइडियोलॉजी की, बहुजन पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा था, अब उन्हें भी ये लगने लगा कि यार अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से है, ये इनकी लोकप्रियता भी बढ़ जाएगी, और मान लो अगर कल को रिजल्ट आ जाता है
तो मीडिया पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सच साबित हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दूसरी कोई रीजनल पार्टी नहीं है। तो बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, तो यहाँ पर तीन त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पर आजाद समाज पार्टी ने कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट्स जो है उतारे हैं, लेकिन जब वहां पर जब बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का जब आगमन हो जाता है, तो क्योंकि वहां पर एक क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप जो है वो बसपा में होने की वजह से आजाद समाज पार्टी को वहां रिजल्ट मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप आजाद समाज पार्टी के पास नहीं है। वो एक ही चेहरे का इस्तेमाल करके वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी फिलहाल उन्हें बहुत समय भी लगेगा। तो ये एक चीज है। और कलेक्टिव लीडरशिप का ये फायदा होता है कि कुछ रीजनल लीडर्स होते हैं, कुछ बीच बीच में से जो लीडर्स है जो भेजे जाते हैं वो होते हैं, और कुछ सेंट्रल के लीडर्स होते हैं। तो इसका इनका अपना अपना इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट भी काम करेगा। बात करते हैं बीबीए की, वंचित बहुजन आघाड़ी की। तो फिलहाल पांचों राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर अभी तो वंचित बहुजन आघाड़ी का मतलब, जिन्हें हम एज अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखते हैं, फिलहाल उनकी स्थिति नहीं है कि वो कहीं पर भी चुनावी मैदान में नजर आए। लेकिन तेलंगाना में हमने देखा कि केसीआर के लिए जो है प्रकाश अंबेडकर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए, उनका हमने एग्जिस्टेंस देखा था पिछली बार। लेकिन वो कितना इम्पैक्टफुल रहता है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल वहां तेलंगाना के अंदर अगर बहुजन आइडियोलॉजी की बात करें, बहुजन पॉलिटिक्स की बात करें, तो फिलहाल सारा का सारा बहुजन पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ आर एस प्रवीण कुमार के इर्द गिर्द। आर एस प्रवीण कुमार को ये पहला स्टेट ऐसा है कि जहां पर सीएम का दावेदार या फिर सीएम का चेहरा बसपा ने जो है वो घोषित किया। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। पंजाब के अंदर भी देखते हैं, पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की का जो गठबंधन है वो प्रकाश सिंह बादल की जो पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हुआ था। लेकिन वहां पर भी बसपा ने जो है अपना सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। लेकिन तेलंगाना में जो है कई स्ट्रेटर्जी बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरीके से बदल दी है। तेलंगाना में सबसे स्ट्रेटर्जी बदल दी है। तेलंगाना में बसपा ने अलग तरीके से खेल रही है बहुजन समाज पार्टी, ये कह सकती है। पहली बात तो घोषणा पत्र तैयार किया है बसपा ने तेलंगाना के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं बनाती है, लेकिन तेलंगाना में कुछ अपने रीजनल रीजन है, और वहाँ की जो रीजनल समस्याएं हैं वो भी सेंटर के तौर पर कहो या फिर आम लोगों से कम्युनिकेट नहीं होती है। जो साउथ की समस्याएं हैं वो नॉर्थ के लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं होती है, पता नहीं चलता है उनकी दिक्कतों में, और हमारी दिक्कतें दिखने में सेम होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होने की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर होता है। तो वहां उन्हें एक अलग सी आजादी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वो अपने तरीके से टैकल कर रहे हैं आर एस प्रवीण कुमार और वहां की जो सारी टीम है। तो ये वहां पर केसीआर जो है, केसीआर की अभी सरकार है, और केसीआर की सरकार जो बीआरएस, जो कि पहले टीआरएस रही थी, तो टीआरएस की वजह को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेता जो भीम आर्मी के नेता है वो भी वहां पहुंचे थे, चंद्रशेखर रावण, और उसके बाद प्रकाश अंबेडकर भी पहुंचे थे। इसके बाद एक माहौल तैयार हुआ केसीआर के खिलाफ में, और केसीआर के खिलाफ में माहौल ऐसा तैयार हुआ क्योंकि केसीआर का एक बयान था कि उनका ये कहना था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। और संविधान की समीक्षा, ये जो बयान रहा, ये बयान जो है वो जो एससी एसटी के लोगों को बड़ा ही हर्ट कर गया, और उसी हर्ट की वजह से एएसपी का जो है वो वहां तेलंगाना में कुछ हो नहीं पाया। वंचित बहुजन आघाड़ी तो वो मूड में नहीं थी, मतलब उस तरीके से वहां पहुंच नहीं है वंचित बहुजन आघाड़ी की। तो ये वहां पर एक तौर पर जो है केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, भारत भारत राष्ट्र समिति, और ही बहुजन समाज पार्टी, इनका कड़ा मुकाबला है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तेलंगाना के अंदर 5 सीटों से ज्यादा ला नहीं पाएगी, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस है वहां पर तो त्रिकोणीय मुकाबला रह सकता है। वहीं बात करते हैं लोकसभा चुनाव की और अपनी बात को खत्म करते हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो ये पांचों स्टेट जो रहेंगे ये मेन भूमिका में रहेंगे, उसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश रहेगा। लोगों का ये मानना था, या फिर कई विश्लेषकों का ये मानना था कि बहुजन समाज पार्टी ने या तो
बीजेपी के साथ चली जाएगी, या तो विपक्ष का जो महागठबंधन बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इंडिया अलायंस के साथ चली जाएगी। लेकिन जब देखा गया तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड अलग लिया, और अभी फिलहाल नहीं कह सकते कि वो वही स्टैंड रहेगा, लेकिन जो स्टैंड अभी लिया है उस स्टैंड की बात करते हैं तो कई बार जो है बसपा को रोकने के लिए अभी तो जो वीडियो भी वायरल किया गया, वो मतलब उसमें वॉइस और दूसरा रहा, और जो लिपसिंग भी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन ये चीजें हुई। तो ये चीजें होकर ये बताया गया कि बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी है और बीजेपी को जिताने का काम करेगी। ये वीडियो वायरल किया गया था मध्य प्रदेश के चुनाव के जस्ट एक दिन पहले। तो ये भी यही बात जो है, ये मीडिया ने भी इस बात को बहुत अच्छा परसेप्शन बनाया था कि बीएसपी जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगी, और ये विधानसभा के चुनाव में भी बीएसपी जो है वो इस इंडिया अलायंस की बैनर तले शायद चुनाव लड़ सकती है। तो ये अगर हम एमपी की बात करते हैं, एमपी में बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस के साथ अच्छा अनुभव नहीं आया। क्योंकि नहीं आया क्योंकि वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो समर्थन तो दिया, उसके बाद एक जो कैंडिडेट है वो टूट कर कांग्रेस में चला गया। तो ये विधायकों को तोड़ने का जो जिम्मा है ये कांग्रेस ने उठा रखा था। तो मतलब आपका जो, एक तो पहली बात आपका नेता तैयार नहीं होगा, और अगर नेता तैयार भी हो जाता है तो वो अपने दम पर काम ना करे, वो हमारे हमारे छत्र छाया में काम करे, ये एक चीज रही। तो लीडर नहीं बनने देने वाला जो सिस्टम है वो कांग्रेस की नीति आज भी। वही राजस्थान में, तो ये राजस्थान एमपी में भी सही अनुभव नहीं रहा रहने की वजह से कांग्रेस के साथ, और इतिहास भी अगर आप देखते हैं तो इतिहास में भी कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधीवाद से सावधान, विवेक गांधी, या फिर उन्होंने क्या किया अछूतों के लिए, वो सारी चीजें जो है वो बैकग्राउंड फिर सारा एक साथ निकल कर आ जाता है। फिलहाल तो जो 2024 की बात करते हैं तो अभी इन स्टेट से होकर गुजरने वाली है बसपा, और इन स्टेट में ये जो रिजल्ट आएंगे, हालांकि मानवर कांचीराम साहब कहते हैं कि इलेक्शन तो 5 साल में आते जाते रहेंगे, लेकिन सोशल मूवमेंट का जो कार्य है, जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, वो लगातार चलते रहना चाहिए। और एज अ बहुजन मीडिया हम भी ये 5 साल में चुनाव आएंगे जाएंगे, इन चीजों पर भी हम काम करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो सोशल मूवमेंट जो है, सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, उसको भी जारी रखना बहुत जरूरी है कि कोई निराशा की कोई बात नहीं होगी। आप तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारे लोग जो है वो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, तो ये इन चीजों का जो है वो हमारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है, और इसी के साथ इन तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझते हुए अपने समाज को ढालने की कोशिश करना है। अभी भी हमारे समाज में पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। उसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी की वजह से कई बार हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। एज अ बहुजन मीडिया हम ये बता रहे हैं कि हमारे समाज को अभी भी इन चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं समझता है कि एक व्यक्ति की एक वोट की कितनी कीमत होती है, और वो जो कीमत है, जैसे कि मानव साहब कहते हैं कि आपका वोट कट जाता है, आपका वोट बिक जाता है, आपका वोट कैप्चर हो जाता है, आपका वोट छीन लिया जाता है, या फिर मशीन के माध्यम से चोर लिया जाता है। ये सारी चीजें जो है ये बहुजन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, और बहुजन पॉलिटिक्स को पावर में आने से रोकती है। जैसे कि अलग अलग षड्यंत्र होते हैं, अफवाहों का भी इस्तेमाल होता है, फर्जी वीडियोस आईटी सेल के माध्यम से भी होता है, और इस प्रकार से भी होता है। और ये तमाम चीजें जो है वो बहुजन पॉलिटिक्स को ही नहीं बल्कि इस देश की मनुवादी व्यवस्था को भी अफेक्ट करती है। बहुजन पॉलिटिक्स को जो है वो नेस्तनाबूद या फिर खत्म करने की कगार पर लेकर चलती है, और मनवादी सिस्टम को मजबूत बनाती है। तो यही आज के इस आपके संडे विहार प्रोग्राम में आपके विषय को पता नहीं हम न्याय दे पाए या नहीं, लेकिन जितनी जानकारी हमको लगी कि इन चारों राज्यों की विधानसभा में हम क्या कुछ दिख सकते हैं, हमने प्रयास किया। और हमारे बच्चे भी बड़ी जो है परेशान कर रही थी, अभी सो गए। तो आप तमाम लोगों का धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना, और अगर कुछ बात है तो आप सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। या थैंक यू स्नेहा जी। आप डबल वर्क कर रहे हैं, एक तो माँ बनकर, साथ साथ में समाज में जो परिवर्तन की जो परिभाषा आपने काफी बड़ी अनुभूति, आप काफी अच्छी तरह से आपने जो रचना की है और जो हमारे दर्शकों के सामने जो आपने प्रेजेंट किया है, उसके लिए काफी काफी साधुवाद और धन्यवाद। और
मेंबर्स को कोई प्रश्न हो, प्लीज हैंड रेज कीजिए और प्रश्न पूछिए। सत्यनाथ जी, यू कैन अनम्यूट और प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको समय दिया इंटरेक्ट करने के लिए। और जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जी हैं, सॉरी, मैं देख नहीं पाया कौन, इनका नाम क्या है। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा 2-4 मिनट हमें दें ताकि इंटरेक्ट करूं, उनसे कुछ प्रश्न पूछूं और फिर उसका रिस्पांस हम करें। ये ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन पूछिए, उसका उत्तर वो दे देंगी और खत्म हो गया। ऐसे में कुछ बार वार्तालाप नहीं हो पाएगी। सो इफ दैट इज अलाउड तो मैं कुछ पूछता हूँ। आप थोड़ा संक्षिप्त में, सत्यनाथ जी, मैं विवेक बोल रहा था, तो आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछे ताकि बाकी जो मेंबर्स है उन्हें भी थोड़ा चांस मिले, ठीक है? तो तो हमने इसीलिए 15 मिनट का मांगा, 2-4 मिनट का तो मैं मांगा है। तो मतलब एक प्रश्न नहीं है, बस उसका उत्तर वो दे देंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रश्न पे आ जाइए ना, तो फिर आपका फिर उतना हमें बैक एंड फोर्थ जाने की जरूरत नहीं प्रश्न पड़ेगी। ही होगा, हाँ, हाँ जी, प्रश्न ही होगा। हाँ जी। तो हमारे हिसाब से ये जो अगला अभी का तो चुनाव आधा खत्म हो गया। 2 जगह चुनाव जो होना होगा और हो चुका है लगभग। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वो इंडिया के लिए बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस उतना इम्पोर्टेंट 47 से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ था। क्योंकि इसके बाद चाहे तो हिंदू राज होगा या हिंदू राज नहीं होगा, तो यही बात है। तो आप नेहा जी है ना? हाँ, आप स्नेहा इस जी, बात इंजीनियर पे, स्नेहा। हाँ, स्नेहा स्नेहा एग्री करती हैं कि ये बहुत ही निर्णायक अ, चुनाव है या नहीं है? आप जी, आप अगर जी हम इसे अगर दो भूमिका में देखते हैं, एक अपने आप को जब हम बहुजन मीडिया के तौर पे देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक है। ना सिर्फ इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं, बल्कि इस देश की जो संविधान है और उसकी जो मूल भावना है, उसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आने वाले समय में ये डिसाइड करेगा कि आपका वोट का अधिकार कितना वैल्यूबल रहेगा या फिर वो सिर्फ एक वोट का अधिकार बन के रह जाएगा। यही यही जो इलेक्शन है ये भी डिसाइड करेगा कि जिस 5 साल में हमने जो देखा है, जो वायलेंस हम देख रहे हैं, इन 10 सालों में जो वायलेंस देखा है, उस वायलेंस का इम्पैक्ट किस प्रकार से होगा। और जिसकी बात की जाती है, रिप्रेजेंटेशन की जो बात की जाती है और जिससे हम कुल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी डिसाइड होगी कि अब वो अपॉर्चुनिटी रहेगी या नहीं। तो नहीं ये तो हम देखते हैं कि निर्णायक भूमिका में रहेगा। लेकिन एज अ अम्बेडकराइट एक और चीज बता दे, फिर आप बोलिए। एज अ अम्बेडकराइट हम इस चीज को ऐसे देखते हैं कि ये संघर्ष है। एक क्रांति का समय आता है और उस पर प्रतिक्रांतियां होती रहती है, तो हम इसे अपने आंदोलन के स्वरूप में भी देखते हैं। तो अगर हम इसे आंदोलन के स्वरूप में देखेंगे तो हमें इसके खिलाफ लड़ने के लिए कई असेट्स या फिर कई चीजें हमको मिलती हैं कि हम इसे कैसे रोक पाएंगे या फिर इसे रोकना कितना जरूरी है। तो दोनों तरफ से देखें तो एक निगेटिविटी भी आएगी कि ये निर्णायक भूमिका में अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो क्या होगा, और अगर नहीं कुछ कर पाए तो हम एज अ आंदोलनकारी, एज अ राइट जो लोग हैं, उनके हिसाब से ये होगा कि ये प्रतिक्रांति का दौर है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और प्रतिक्रांति के दौर में आप तमाम लोग जानते हैं
जब सम्राट अशोक का शासनकाल खत्म हुआ और जब हमारे 10 राजाओं के सर 10 राजाओं और तमाम भिक्षुओं को जब मारा गया था, तो उसके बाद लगभग बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई सौ साल लग गए। तो ये भी एक चीज है कि अगर हम इस निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंचते हैं, तो वो दौर आएगा जिसे पुष्यमित्र शुंग का समय कहा जाता है। तो काफी चिंता की बात है और बेशक इसमें कोई कोई शक नहीं है कि सॉरी सॉरी, मैं समझ गया। मैं बस एक ही कोई प्रश्न और पूछना है, उसके बाद आप जवाब दे देंगी और खत्म हो जाएगा। अ, तो कुल मिला के आप भी एक्सक्यूज मी, आप भी ये समझती हैं कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये भी तो आप समझती होंगी ना, इलेक्शन में इतना इन्वॉल्व रहने के कारण, कि बहुजन समाज पार्टी अकेले इतना नहीं सीट जीत पाएगी कि वो कुछ उसका कुछ इम्पैक्ट हो। अगर जैसे 2001 से या 2 से शुरू से ही जब भी जीती है तो किसी से अलायंस करके ही, शुरू में एक समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ, तब उसके बाद फिर कुछ और भी होते गए, लेकिन बिना किसी अलायंस के ये अकेली नहीं जीत सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, इसको किसी से अलायंस करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किससे करना चाहिए? मेरा बस इतना ही प्रश्न। इसका राइट तो जो है, जो भी पार्टी की लीडरशिप होगी उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारा जानना चाहते हैं, हमें लगता है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी नेचुरल अलायंस में अगर बिलीव करती है, तो नेचुरल अलायंस जो है ये हमेशा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि इसके कई बार रिजल्ट भी हमने देखे हैं। और प्रीपोल अलायंस की बात करें तो उसका भी जो सारा अधिकार है वो तो नेतृत्व के पास रहेगा। तो इसीलिए हम एज अ मीडिया भी हम सजेशन दे सकते हैं या फिर सवाल खड़े कर सकते हैं कि कैसे जाएगी, लेकिन वो तो सारे अधिकार उधर रिजर्व है। लेकिन ये जो नेचुरल अलायंस की अगर आप बात करें तो ये नेचुरल अलायंस काम में आ सकता है, लेकिन ये भी एक चीज है कि जब भी ये बार्गेनिंग होती है, उस बार्गेनिंग में हमने देखा है कि जो अम्बेडकराइट जो पॉलिटिक्स रही है, उस अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में अम्बेडकराइट जो लोग हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। तो ये बार्गेनिंग पावर का हमें लगता है कि ये जो रुकी हुई जो चीज है, जो अभी हमें दिख रही है कि ये रुकी हुई है, फिलहाल किसी के साथ जा नहीं रही है, कोई ना विपक्ष के साथ कोई बातचीत दिखाई दे रही है, कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये जो रुकी हुई चीज है, हमें लगता है कि बार्गेनिंग के लिए, ये हमारा अपना परसेप्शन है, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन मे बी क्योंकि बहुजन बहुजन समाज के लोगों को और अम्बेडकराइट लोगों को पॉलिटिक्स में जब भी बार्गेनिंग हुई या फिर जब भी सौदा हुआ, तो उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। और ये जो पॉलिटिक्स है, अपने कांचीराम साहब की पॉलिटिक्स को भी पढ़ी होगी या फिर जानकार तो होंगे ही, बाबा साहब की पढ़ी होगी और बहन जी की। अब देखिए बहन जी की जो पॉलिटिक्स है वो बाबा साहब से मेल खाती है, साहब से मेल नहीं खाती। कांचीराम साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो अपॉर्चुनिटी को लेकर थी, और बाबा साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो तत्वों को लेकर थी। मतलब वो अपने तत्वों से जो है तत्वों से समझौता नहीं करते थे। वही चीज जो है, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ये बसपा की जो लीडरशिप है वो अपने तत्वों से समझौता नहीं करती है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें आंकड़ा भी चाहिए कि उनके उनके हिस्से में कितना आएगा या उनके लोगों को कितना मिलेगा। ये एक चीज है, और अगर नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं? जैसे बाबा साहब का रहा, हम अगर हमको हमारे हिस्से में कुछ नहीं है तो बाबा साहब भी जो है कभी अपनी तटस्थ भूमिका में रहे, 2 बार चुनाव हार, कांग्रेस ने हरा दिया, लेकिन वो अपनी भूमिका उन्होंने नहीं छोड़ी। वही चीज जो है वो इसमें दिखाई देती है। अब वो तो समय ही बताएगा कि क्या कुछ होता है राजनीति में। तो आज कुछ है, कल कुछ भी हो सकता है, तो बी पॉजिटिव जी। ओके, थैंक यू, आपने अपना परसेप्शन बताया। और मेरी समझ से
अभी उनकी बहुत सी लाचारी भी हो सकती है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लाचारी ये है कि उनकी तो बहुत बड़ी महल सा बना ले ली है, और उनके भाई लोगों को बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो उसकी वजह से ईडी सीबीआई वगैरह का डर तो नहीं है, उसकी वजह से उनका जो भी डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो ये बात हमें सोचने की जरूरत है। जी धन्यवाद। सर, ये चीज हम है ये भी ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सीबीआई की रेड से डर गई या फिर जो है इनकम टैक्स से डरी हुई है, ये परसेप्शन बनाया गया है। लेकिन वही चीज अगर आप देखते हैं तो ये आय से अधिक संपत्ति वाले मामले कई नेताओं के पास पड़े हुए हैं, और जब भी चुनाव आते हैं ये मामले को मीडिया तभी उठाती है जब चुनाव आने को होता है। बाकी बाद में उनको क्लीन चिट मिलती है, क्लीन चिट पे जब वो साफ सुथरे नजर आते हैं तो उसका प्रचार नहीं होता। ये भी एक चीज हमने देखी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लखनऊ में ही थे, और अभी जो नगर निकाय चुनाव जो हुआ उसमें भी हमने देखा है। तो ये अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है या फिर संपत्ति का मामला है या फिर ऐसा प्रेशर का मामला है, तो ये चीजें आप देखिए। बाकी जो पार्टियों के लोग हैं उन्होंने भी कोई मनरेगा में तो मजदूरी करके नहीं कमाया है, सबने राजनीति से ही कमाया है। ये इन चीजों को हमने भी नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ये सारी चीजें आते रहेगी, ये घोटाला वो घोटाला। अब इस देश के अंदर रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, जितने साल रहे उन्होंने हर साल टिकट में 1 रुपया कम किया। मतलब अगर आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं और उसका टिकट अगर आपको 10 रुपए देना है, तो एक साल वो 10 का 9 हुआ, उसके बाद वो 9 से 8 हुआ। समझ रहे हैं? तो लेकिन फिर भी चारा चोर किसे कहेंगे? लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है। तो SC ST OBC के जो नेता है उनके साथ ये चीजें होती हैं, और इन चीजों को हमारी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी को अगर हम थोड़ा सा जो है ब्रॉड कर ले तो इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है। और भी बहुत मामले हैं जिन मामलों पर हम बात कर सकते हैं। Yeah, thank you very much. Yeah, thank you, Sneha ji. I think we need to move on to the next question. और ये तो चीजें चलते रहेंगी। जब भी कांग्रेस भी हुई तो कांग्रेस के टाइम पे मायावती जी के ऊपर काफी जो केसेस है वो फाइल हो चुकी थी। लालू प्रसाद यादव हो गए अपने, या जो फोन का जो स्कांड था 2G स्कैम, ठीक है। तो ये चीजें चलते रहती है। इससे हमारे समाज ने सीख लेने की समझ है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सन। ध्यानदेव जी, आपका प्रश्न है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और स्नेहा जी से क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैडम, आपने बहुत अच्छा आज का मार्गदर्शन किया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुजन समाज पार्टी अभी पीछे पड़ रही, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को बहुत नजदीक किया है और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे ब्राह्मण लोग को बिठाए। ऐसा महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग में प्रचार है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, वो बताओ। सर, हम लखनऊ में रहते हैं, तो हमारा जो अनुभव है, हमने अभी तक किसी भी की पोस्ट पर, मतलब सिवाय एक नाम जो है सतीश चंद्र मिश्रा, इनके अलावा हमने और दूसरे जो ब्राह्मण नेता जैसे आप कहते हैं उन लोगों को नहीं देखा है, हमारा अनुभव। तो ये देखिए, ये तो रेशियो तो बना रहेगा, क्योंकि जब आप सारे ज्यादा संख्या वाले लोगों की बात करेंगे तो आपको सारे संख्या या फिर ज्यादा संख्या की बात करेंगे तो ये चीज तो आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि उस क्षेत्र पे किसका कितना पार्टिसिपेशन या फिर किसकी पॉपुलेशन है। अगर आप पॉलिटिक्स को मानते हैं तो वो तो सारा सर का खेल है कि आपके पास कितने मुंडिया है, कितने सर है। और अगर उसमें से कुछ सर यही रहता है ना कि आप एड ऑन करें, तो एड ऑन अगर बहुजन समाज पार्टी का बेस ही है सोशल इंजीनियरिंग, मतलब एक समाज को जोड़ना है और उसके साथ उसको इन्फ्लुएंस, उसके समाज को इन्फ्लुएंस करना है, ये एक चीज होता है। हम बीजेपी की आपको याद दिलाते हैं, महाराष्ट्र के बीजेपी में बहुजन जब जब बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी
तो उन्होंने एक लीडर दिया महाराष्ट्र को स्टेट में। लीडर का नाम है बडोले, नाम हम भूल रहे हैं, राजकुमार बडोले, जो कि जिसे सामाजिक न्याय मंत्री बनाया गया स्टेट का। तो अब आप बताइए कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जो है वो पेशवा ब्राह्मण है, ठीक है, और उनके साथ जो है वो गडकरी है, और उनके टीम में जो है कुछ बैकवर्ड्स भी होंगे, लेकिन वहां पर एक राजकुमार बडोले है। कैसे देखते हैं आप इन्हें? क्या उन्होंने उन्हें समाज कल्याण मिनिस्टर बना दिया तो क्या वो की पोस्ट हो गई उनकी? क्या है वो नहीं, राजकुमार बराबर है बडोले? उसको। नहीं, अभी जी महाराष्ट्र में तो प्रथा है मैडम कि हाँ जो भी समाज कल्याण का डिपार्टमेंट है वो बैकवर्ड समाज बोले तो एससी लोगों को ही दिया जाता है। ये रिवाज हाँ, है तो इलेक्शन, तो उसका पॉलिटिक्स ये का उसका रिवाज। क्यों, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ ये मुंडियों का खेल है, जो पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, आपके पास कितनी मुंडियां है, या अब उस मुंडियों को भी, आपके पास जितने सर है उस सर को भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कितनी जातियों के सर है। तो ये चीजें हैं, और इसे अगर हम सामाजिक समीकरण से लेते हैं या राजनीतिक समीकरण से लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। और जो हम जो लगाते हैं, या हमारे महाराष्ट्र में जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों को करीब करके, तो ऐसा कोई की पोस्ट पर अगर आप देखते हैं पार्टी में, तो कोई बंदा नहीं है कि जिसके पास इतनी बड़ी पोस्ट हो कि जो पूरी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर उसको अपने हाथों में नचा सके, क्योंकि हमने तो देखा है। और रही बात सतीश चंद्र मिश्रा की, फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा के पास अभी वो पोस्ट नहीं, मतलब वो जो यूपी में इलेक्शन के समय में 2007 के समीकरण को वो दोहराना चाह रहे थे, जो कि उसके बाद से जो अभी 2022 में चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद से सतीश चंद्र मिश्रा सिर्फ उनके कानूनी मामले देखते हैं। जहां तक कि उन्होंने इसका बहन मायावती जी के माध्यम से इस चीज को लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई थी, और उन्होंने जानकारी दी थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि अब वो सिर्फ कानूनी मामले देखेंगे। तो और क्या चाहिए, मतलब यही चीज है कि हमारी हमको निगेटिव परसेप्शन बनाने के लिए जो लोग ये छोड़ते हैं फार्मूले, वो फार्मूले हमारे दिमाग पर असर कर जाते हैं। सर नेक्स्ट। ओके, Yeah, थैंक यू मैडम। जी thank you, Sneha ji. Sandeep Chavan ji, please unmute and please ask the question. थैंक यू विजय जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। स्नेहा जी जय भीम, बहुत बढ़िया आपने बोला, आपका नॉलेज बहुत ही तगड़ा नॉलेज लग रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप जो नॉलेज शेयर किए। मेरा एक ही प्रश्न है कि आपकी राय ईवीएम के बारे में क्या है, और अभी जो होने वाला है, ऑलरेडी दिसंबर में होने वाला था, उसको जनवरी में इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पे दिल्ली में बड़ा हल्ला बोल करने वाले थे पूरे देश भर से लोग, तो आपको पता ही होगा। तो ईवीएम के खिलाफ तो आपकी क्या राय है? ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टेट में कोई जीतेगा और सेंट्रल में कोई जीतेगा, ये तो विदाउट ईवीएम तो मुमकिन नहीं लग रहा है। तो आपकी राय क्या है? देखिए, हमारी राय, हम भी कोई ईवीएम के लिए तो सकारात्मक इसमें नहीं है। जिन्होंने ईवीएम बनाया वो लोग ही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 26 नवंबर को जो है संविधान दिन के अवसर पे वामन मेश्राम जी और उनके जो सहयोगी संगठन है, उसके माध्यम से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हल्ला बोल करने वाले थे। अब फिलहाल वो डेट जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है, वो शायद दिसंबर में अब होगा। लेकिन हालांकि उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। बस हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि संविधान दिन के अवसर पे ये चीज होने वाली थी। देखिए, ईवीएम जो है वो कांग्रेस लेकर आई थी, और जब ईवीएम के भरोसे पर जब कांग्रेस जीत रही थी तो कुमार स्वामी ने ही उस समय जो है कोर्ट में गए थे इसके खिलाफ कि ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है, तो इस वजह से हमारा जो है भरोसा नहीं है ईवीएम पर। उसके बाद पेपर ट्रेलर आया, वो आया, पेपर ट्रेलर आया, उसके बाद भी जो पर्चियां है उसको नहीं गिनने की भी बात हुई है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ईवीएम को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर सुप्रीम कोर्ट का, ईवीएम को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर जो है अपने चुनाव आयोग का, ये चीजें जो है कई बार हमको खलती है। एक अम्बेडकराइट होने के नाते हमें इस बात से हम भी परेशान होते हैं कि आखिर इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। जिन जिन चीजों पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि
हम एक वोट दे रहे हैं, जिस लोकतंत्र में एक व्यक्ति के एक वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की अंबानी की है, उतनी ही स्नेहा की भी होगी, उतनी ही नरेंद्र मोदी की भी होगी और उतनी ही विवेक चौहान जी की होगी। लेकिन बावजूद इसके विवेक चौहान जी को पता नहीं है कि उन्होंने वोट दिया, वो वोट उन्होंने जिसको दिया है उसको मिला या नहीं मिला। स्नेहा को नहीं पता कि उन्होंने किसको दिया है। तो ये जो चीज ट्रांसपेरेंसी का जो सवाल आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी का सवाल जो है हमें भी बहुत परेशान करता है। आज ईवीएम पर कांग्रेस ने 10 से अधिक साल तक कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाई, लेकिन जैसे अब जब सवाल खड़े होते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारे देश के अंदर एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है। जैसे दिल्ली के अंदर ईवीएम पर जब सवाल खड़े हुए तो आम आदमी पार्टी के हाथों में सत्ता सौंप दी गई, ताकि आप ये ना बोले कि बीजेपी जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल करके सरकार में आती है। यही चीज जो है आपको गोवा में देखने को मिलेगी, यही चीज जो है आपको राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो कुछ स्टेट्स को ये कांग्रेस और बीजेपी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन चीजों को हमको समझना होगा। पॉलिटिक्स सिर्फ हार और जीत का सवाल नहीं है, वर्चस्व का सवाल नहीं है। इसको जब तक आप विचारधारा से नहीं लेंगे, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। जब आप इसको एज विचारधारा लेंगे, एज आइडियोलॉजी लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी किस लेवल की होगी। हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो इतनी भी नहीं है कि हम जो है जिस जिस पार्टी को अपना मानते हैं, उस पार्टी के भी शीर्ष को या फिर या जो लोकल लीडरशिप है उसके ऊपर भी हम अपना जो है विश्वास नहीं जता सकते। लेकिन इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बल्कि उनमें एक डिवोशन है, सैक्रिफाइस करने का, छोड़ने का। वो चीजें भी जो है वो हम अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत तो बताते हैं, लेकिन जब हम उसको जमीन पे देखते हैं तो हमारे पास सैक्रिफाइस और डिवोशन की बहुत कमी है, और इसी वजह से हमारा नुकसान होने वाला है। और जो बंते जी जब भी हम सुन रहे थे, तो जो बंते जी ने बताया कि हमारा जो माइंड है वो दिन ब दिन जो है वो अधोगति की तरफ जा रहा है, मतलब हम पीछे जा रहे हैं। और ये तब तक होते रहेगा जब तक हमारी मैत्री जो है वो उस लेवल पर नहीं पहुंचेगी जिस लेवल पर हम सोच कर ये वापस आए कि हमें इंसानियत से कैसे सरवाइव करना है। ये जब बंदे जी बता रहे थे वही चीज है कि आज हम जब अपने आइडियोलॉजी पर शक करते हैं या फिर हम अपने आइडियोलॉजी को कमजोर देखते हैं, तो इसमें जिन कमियों को हम देखते हैं उन कमियों को हम फील तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी अधोगति ना हो। ये चिंता हमें खलती है। जी संदीप चौहान जी बोलिए। No, thank you, Sneha ji. Thanks for your response. थैंक यू स्नेहा जी। एक्सक्यूज मी। और कोई मेंबर्स को प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। स्नेहा जी, मेरा प्रश्न है, मैंने बोला कि चलो मेंबर्स को थोड़ा वक्त दे देते हैं। तो हम बहुजन पॉलिटिक्स के बारे में हम जब जानते हैं, जैसे यूपी में मायावती की सरकार थी, तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं होता है जो हमारी खबरें जमीनी स्तर पे पहुंचाए लोगों तक, है ना। जो सही कार्य है जो मायावती की गवर्नमेंट ने भी किया था, अभी तक उस चीजों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ओके, जब हम देखते हैं कि जैसे भी सोशल मीडिया ने चालू हो गया, जैसे हमारे आप यूट्यूब जैसे आप जैसे चैनल, यूट्यूबर्स चैनल्स है, फेसबुक पे माध्यम से जो भी हमारे जो नए जर्नलिस्ट जो स्टार्ट हो गया, तो तब से हमें पता चल रहा है कि सही मायने में मायावती की सरकार थी जिन्होंने जमीनी स्तर पे जो समाज के लिए काम किया वो काफी सराहनीय था, काफी लोगों को उसका फायदा हुआ। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इन चीजों के ऊपर कभी उनका उल्लेख नहीं किया, जिससे एक समाज में अभी भी परसेप्शन है कि वो सिर्फ सैंडल की बात को लेके, क्योंकि उनके सैंडल जहाजों से भेजा करते थे। इस तरह का जो परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन, ये सही में हमारे लोगों के मन में बिठा है। जैसे कि एक दर्शक ने भी प्रश्न किया था कि भाई हमारे लोग सत्ता में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं तो करप्शन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो चीजें होती है, आई थिंक टाइम है अभी कि हमारी जो मीडिया है, हमारी जो सोशल मीडिया, इनका आप
कितना ये अहम भूमिका देखते हैं, उस भूमिका को हमारी जो सोशल स्ट्रीमर्स, मीडिया, यूट्यूबर्स है, आर दे एबल टू सेंड दिस मैसेज टू द मासेस, आर दे कन्विंसिंग द पीपल, ताकि एक हमारी संख्या तो काफी है, लेकिन उस संख्या का हमारा पॉलिटिकल फायदा नहीं हो रहा है। जब तक पॉलिटिक्स में, सत्ता में हम आएंगे नहीं, तो हमारे जो प्रश्न है, शिक्षा है, मेडिसिन है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, अट्रॉसिटीज का है, इन चीजों पे हमारे पे कोई काम नहीं करेगा। तो आपकी क्या राय इस बारे में? हमें लगता है कि अभी जिस पहली बात तो जो है, हमारे लोग ओकल नहीं है। मतलब हम पत्रकारिता में भी अगर आप देखते हैं तो हमारे लोग बोलने वाले नहीं है। ये कैसे, एग्जाम्पल देकर हम आपको बता दें कि लखनऊ यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया। तो अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बनाया गोमती रिवर फ्रंट, हालांकि कुछ है नहीं, एक गार्डन तरीके से है और पूरी खूबसूरती के साथ। तो उसका बजट उतना नहीं रहा होगा जितना जितना बजट उन्होंने उसको बताने के लिए किया। लेकिन वही चीज जो अगर आप बसपा की तरफ देखें, बस ये इमेजिन करें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा 1950 में, वो लागू हो जाता है, हाँ लागू हो जाता है, और उसके बाद बाबा साहब अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं कि मैंने संविधान लिखा। ऐसा देखा है? ऐसा हमने नहीं देखा है। वही चीजें जो है वो बसपा के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी नहीं देखी गई। लेकिन ये चीजें अखिलेश यादव का जब नंबर आता है तो अखिलेश यादव आज भी गोमती रिवर फ्रंट का ही जो गाना है वो गाते हैं। अब ये तो हो गई नेताओं की बात। अब जो लोग हैं, लोगों में हमारे लोगों से भी यहाँ पर यूपी में अभी हम देख रहे हैं लगातार, जैसे एमपी के लोग जो है वहां पर सत्ता नहीं है या फिर सरकार में नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी दिक्कतों को भी बता पा रहे हैं। यूपी में वो चीजें जो है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है, लेकिन वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये चीजें जो है, हमें लगता है ये कैडर का ही अभाव है कि पहले जो एक कैडर हुआ करता था उस कैडर से ये चीजें जो है ओकल ओकल होते थे लोग। अब जैसे अब हम पत्रकारिता में भी अगर उसे देखते हैं या सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, तो कुछ ही लोग जो है, मतलब इसकी तादाद बढ़नी चाहिए। हमारे कहने का मकसद ये है कि इसकी तादाद बढ़नी चाहिए कि एक ही बात को जब गलत होती है और एक ही बात को, गलत बात को बार बार दोहराई जाती है तो उसे सच माना जाता है। तो जो सच बात है उस सच बात को दोहराने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या होनी बहुत जरूरी है। और एज अ पत्रकार, एज अ एक्टिविस्ट और एज अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल वर्कर, ये तमाम चीजों में हमारी जो बोलने की जो क्षमता है या फिर बात करने की, वो चीजों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और वो चीज तो शायद समय के साथ आएगी, क्योंकि हो सकता है ये हमारे जो सामाजिक स्थिति है उसकी वजह से एक दिक्कत है कि हमेशा से हमारे जो लोग हैं वो सहमे से रहते हैं, डरे से रहते हैं, और हम खुद भी डरे सहमे ही रहते हैं। और डरे सहमे होकर थोड़ा सा जो अपने आप को तैयार करते हैं कि नहीं हम थोड़ा समाज की बातों को बोल पाए, तो ये चीजें जो है इम्पैक्ट करेगी, लेकिन इसको समय लगेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। आपने और कोई मेंबर्स को प्रश्न है? प्लीज, दिस इज द लास्ट कॉल, क्योंकि स्नेहा जी के पास में छोटी बेबी भी है और काफी जैसे वो डबल ड्यूटी का काम करे बेसिकली, साथ साथ में आगे भी एक्चुअली प्रबोधन कर हमारी रहे हैं। टीम जो है वो राजस्थान में है, और आज करौली और करौली के साथ गंगापुर सिटी, दो जगह पर हमारे लोग पहुंचे हैं। तो इस वजह से हमारे घर पे अभी कोई नहीं है, संदीप भी वहां है और हमारे जो महाराष्ट्र के हमारे जो संवाददाता है वो भी वहां है। तो इसी वजह से इनको हमने रखा था नीचे हमारी लैंडलॉर्ड के नीचे घर पे, लेकिन जैसे लेट हो गया, 9:30 हो गया, तो अब उनकी सोने का टाइम हो गया, तो फिर वो वापस आ गई। इसीलिए नहीं नहीं सबको माफी चाहेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब भी नहीं कर नहीं नहीं दिया नहीं, होगा। हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन हम आपकी तो प्रशंसा, थोड़ा अपना भी ऑफ कर दिया था। नहीं नहीं, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इसके, यानी आप एक बच्ची का भी ध्यान साथ साथ में इस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं, तो काफी यानी बड़ी प्रशंसनीय चीज है जो आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सत्यना जी, आपका प्रश्न है, आपने हैंड रेंज किए, प्लीज संक्षिप्त में, काफी टाइम हो रहा है। ठीक है जी
मैं बस संक्षेप में यही बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि बहन जी ने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। जो कुछ भी किया है, अ, हम पॉइंट आउट करना चाहते थे कि उनकी लाचारी क्या होगी। वैसे वैसा नहीं भी किया होता तो वो जो अभी मोदी जी की सरकार है उनको थ्रेटन करके अपनी दिशा में उनको, मोदी को जिसमें फायदा होगा उस दिशा में झुकाने का प्रयास करती। लेकिन बस उनकी लाचारी को पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि उसको, मोदी को झुकाने की तरफ झुकाना और भी ज्यादा आसान है। वो उन्होंने महल नहीं बनाए होते और फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं भी लिया होता तो भी वो मोदी की तरफ। तो इसको हमें ध्यान में रख करके उनका डिसीजन जो भी हो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हम सबों को अपना मन बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो है, जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुजन समाज पार्टी या आजाद की पार्टी एग्जिस्टेंस में रहे या बढ़े या घटे, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन अभी मोदी कंटिन्यू करेगा 24 में या नहीं करेगा। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा था। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ बोले इस पर? जी, आप कहना चाहें तो बोलिए। सर ऐसा है, अगर हम होते, हम अपना उदाहरण देंगे, अगर हम होते तो बार्गेनिंग करना कोई आसान, मतलब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं तो कि झुका सकते हैं या फिर साथ भी हो लेते, है ना? तो बार्गेनिंग करना तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम होते और हमारे पास कोई तीसरी लार्जेस्ट पार्टी होती देश के अंदर, और वो भी ऐसी कि जिस स्टेट से गुजर के आपको दिल्ली जाना है, वो स्टेट अगर आपके पास मजबूती से है, तो बार्गेनिंग करना कोई मुश्किल बात है हमें लगता नहीं है। बट ये बार्गेनिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम फिर दोहरा रहे हैं कि वो बार्गेनिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो समझौता नहीं करना चाहते हैं। मतलब एक कमजोर समझौता होता है और एक मजबूत समझौता होता है, तो ये कमजोर समझौता नहीं करना चाहते हमारे हिसाब से। हमने जितनी पॉलिटिक्स उनकी जानी है, और हम बार बार यही बताते हैं कि साहब की और बहन जी की पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क है। वो अवसर नहीं ढूंढती है, मतलब या फिर अवसर निर्माण नहीं करती है। जैसे बाबा साहब की रही है कि तटस्थ रहेंगे वो, अपने उन चीजों के साथ बार्गेनिंग भी करेंगे तो अपने सम्मान के साथ क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ये चीजें हमको दिखती है, हम वही बात दोहराएंगे। तो अगर हमारे पास लार्जेस्ट पार्टी होती और हमारे पास एक बड़ा सा ऐसा स्टेट होता जहां पर हमने 4 बार सरकार चलाई, तो हमें बार्गेनिंग करने के लिए हमें नहीं लगता कि कोई ताकत रोक सकती। और सामने अगर मोदी के साथ भी हमें समझौता करना है तो आसानी से मोदी सरकार भी मान जाती और हम भी मान जाते। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि वो अपनी भूमिका से अड़िग है कि हम वैसा समझौता नहीं करेंगे। ये एक चीज। तो हमें लगता है कि लाचारी तो तब होती जब समझौता होता, हमारे हिसाब से ये होगा। जी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलो, थैंक यू स्नेहा जी। अभी एक कंक्लूडिंग की तरफ में हम ले जाते हैं इस सेशन को। काफी वक्त हो गया, आपके यहाँ पे भी काफी टाइम हो गया और बच्चे का भी ध्यान देना है। तो थैंक यू गाइस, टुडे वी हैव हैड सच अ वंडरफुल सेशन। तो शुरू में बनते प्रेयर हो गया, और बनते जी भी उन्होंने देशना धम्म देशना दी। बच्चों की स्टोरी के लिए रिवोना हिवाले ने काफी अच्छी स्टोरी पढ़ी। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे इंडिया से जुड़े, उन्होंने जो इलेक्शन एनालिसिस था और जो बहुजन इंजीनियरिंग था उसके पे काफी उन्होंने काफी अच्छी तरह से एक इंफॉर्मेटिव जो टॉक दिया और एक एनालिसिस जो बताया जो 5 राज्यों में इलेक्शन जो हो रहे। तो अ, और ये प्रोग्राम जो आना भी हर संडे होता है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और
हम आप सभी को काफी धन्यवाद देते हैं जुड़े रहने के लिए। और साथ में स्नेहा जी को पर्टिकुलरली मैं पर्सनली थैंक कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना काफी बहुमूल्य टाइम दिया। और यहाँ पे जो यूएस में जो हमारे बसे हुए जो निवासी लोग हैं उनको इस इलेक्शन के बारे में काफी अच्छी तरह से जो जानकारी दी, उनके लिए काफी धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ में मैं इस आना विहारा को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।